Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will find out the conductivity of the intrinsic semiconductor materials. जैसे बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था what are the intrinsic semiconductor materials. A semiconductor material in its pure form is called as the intrinsic semiconductor material. बट बच्चों अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाए या कुछ एक्सटर्नल हम मटेरियल ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. जैसे बच्चों हमने फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल में भी पढ़ा था कि व्हेन एटम्स आर गोइंग क्लोज टू ईच अदर तो उनके जो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स होते हैं दे विल ओवरलैप एंड दे विल फॉर्म अ बैंड. जैसे जैसे वो क्लोज आते जाएंगे जो उनके बैंड्स की फॉर्मेशन है वो उस हिसाब से चेंज होती जाएगी. अगर उनमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है तो बैंड्स तो बन जाएंगे. जैसे 3s एनर्जी लेवल्स का 3s बैंड बन जाएगा और 3p एनर्जी लेवल्स का बच्चों 3p एनर्जी बैंड बन जाएगा. बट अगर उनकी जो स्पेसिंग है वो क्रिस्टल स्पेसिंग से भी कम हो जाए तो वो जो एनर्जी बैंड्स हैं उसमें से अगर जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 3s जो हमारा एनर्जी बैंड है दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड 3p एनर्जी बैंड विच इज पार्शली फिल्ड. 3s एनर्जी बैंड में हमारे पास बच्चों कितने स्टेट्स हैं 2n स्टेट्स हैं एंड दे आर कम्प्लीटली फिल्ड. बट इन द 3p बैंड वी हैव 6n स्टेट्स एंड उसमें से 2n स्टेट्स आर फिल्ड एंड 4n स्टेट्स आर एम्प्टी. बट अगर एटम्स क्लोज आते जाएंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्रिस्टल स्पेसिंग से भी कम हो जाएगा तो जो सारी फील्ड स्टेट्स हैं वो अपना अलग से बैंड बना लेते हैं और जो एम्प्टी स्टेट्स हैं वो अलग से बैंड बना लेते हैं. फील्ड स्टेट्स हमारी कौन सी हैं बच्चों 2n फील्ड स्टेट्स फ्रॉम द 3s बैंड एंड 2n फील्ड स्टेट्स फ्रॉम द 3p एनर्जी बैंड. ये सारे मिलके एक बैलेंस बैंड बना लेते हैं और जो 4n स्टेट्स हैं फ्रॉम द 3p एनर्जी बैंड वो अपना कंडक्शन बैंड बना लेते हैं. तो हमारे पास कुछ इस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम बच्चों हम बनाते हैं. सो दिस इज व्हाट दिस इज द वैलेंस बैंड and it is represented by VB and this is what this is the conduction band and it is represented by CB. Clear? This is the lowest level of the conduction band whose energy value is EC and this is the highest value of the valence band whose energy level is EV and the separation between these two EC and EV is called as the forbidden energy gap. Clear? This is what? Energy gap. Clear? So we have also defined the difference between the insulators, conductors and semiconductor. In case of conductors ये जो हमारा conduction band है और valence band है वो आपस में merge कर जाते हैं और the value for Eg for the conductors is 0. But in case of जो हमारा semiconductors है फॉर मैं लिख देता हूं फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉर सेमीकंडक्टर्स Eg is what it is in the order of 1 electron volt and for the insulators इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है Eg is in the order of 6 electron volt. Clear? So 1 electron volt for the semiconductor materials and 6 electron volt for the insulator materials. So very high value for the insulator materials. And इसमें बच्चों हमारे पास क्या है 4n states हैं they are completely filled और यहाँ पे हमारे पास क्या है empty states हैं. अगर हम बात करें at 0 Kelvin बच्चों क्या होगा all the energy states जो हमारी valence band की energy states हैं they are completely filled. Clear? और ये हमारा जो conduction band है that is completely empty. It means that all the electrons are means they are packed in the valence band and no electron is free to move in the conduction band. Clear? So it means that the conductivity properties are not possible when the temperature is 0 Kelvin means the current is 0 or the conductivity is 0. Clear? So as the temperature rises, as temperature increases means at room temperature. So what will happen? So at the room temperature means temperature is rising. So all these electrons which are present in the valence band they are getting the thermal energy. So thermal energy लेने के बाद बच्चों क्या होगा अगर उनको 1 electron volt energy मिल जाए क्योंकि हमने बोला है the energy gap between the valence band and the conduction band is what 1 electron volt for the semiconductors. We are discussing for the semiconductors. So जब इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी then what will happen? इलेक्ट्रॉन
one electron will shift from valence band to conduction band. और यहाँ पे हमारे पास वैलेंस बैंड में बच्चों क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज होल. A vacancy created in the valence band is called as the hole. So this hole is just as the absence of the electron, and the electron is now in the conduction band and it is free to move, and now it is responsible for the conduction, means conductivity is there. Clear? And next, electron is there in the surroundings that can also fill this vacancy. मतलब जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है. तो यहाँ पे वैकेंसी फिल हो जाएगी और यहाँ पे अनदर होल इज क्रिएटेड. दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द होल. क्लियर? अगर बच्चों एनर्जी और दे रहे हैं, टेम्परेचर और दे रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाए तो दो हमारे पास होल्स नीचे क्रिएट हो जाए. सो जितने हम इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ट्रांसफर करते जाएंगे उतने ही हमारे पास होल्स नीचे क्रिएट होते जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऊपर की तरफ है और यहां से हम देख रहे हैं, और होल्स का फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. क्लियर? इसका मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें करंट इज ड्यू टू टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स. वन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड इज ड्यू टू होल्स. ठीक है, तो अगर बच्चों हम यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाएं, सपोज हमारे पास ये एक सैंपल ऑफ मटेरियल है, दिस इज semiconductor material, and now this material is connected with a power supply like this. So जो electrons होंगे that will move towards the positive terminal of the battery. This is what, this is electron. और जो हमारे holes हैं they are positively charged. Electron, we know that the electron is negatively charged, and the holes is just the reverse of the electron, and means the absence of the electron, which means corresponding to the positive charge. So positive charge means holes are moving towards the negative terminal of the battery, and electrons are moving towards the positive terminal of the battery. It means that they both these charge carriers will constitute the current, and the total current in the circuit is given by IE plus IH. Clear? Suppose that we have Ne is the concentration for the electrons and NH is the concentration for the holes. Also, this is the capital A area of cross section, and we suppose that VH and VE is the drift velocity of electron, and drift velocity, this is what, drift velocity of holes, and this is what, drift velocity of electrons. Clear? So students, we have one very important relation between the current and the drift velocity. This is what, NVDR. This is what, NVDEA. It is also famous by the relation, it is very famous relation, it is also called as NVIDIA. Clear? So if I want to write down here the current expression for the electron, so this is what, concentration for electrons, drift velocity of the electrons, charge of the electrons, and area of cross section for the material. Similarly, if I write down here the currents due to the holes, this is what, then I will write down concentration for the holes, drift velocity for the holes, charge for the holes, and capital A area of cross section of the material. So I can put the values for IE and IH in equation number 1. So what I can write down, this is I is equal to IE plus IH, which is equal to NEVEEA plus NHVHEA. तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, दिस इज NEVE plus NHVH into E into E. Clear? So Ne the concentration for the electrons and VE is the drift velocity for the electrons. ठीक है, एक रिलेशन बच्चों हमने और पढ़ा है. सपोज वी आर अप्लाइंग हियर द पोटेंशियल कैपिटल V. सपोज हमने यहाँ पे पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, and when we are applying potential V here,
So there will be an electric field developed across the corners of the semiconductor. Clear? And we know that E is what? This is dV by dr. And if we suppose that the applied potential is V and the length of the semiconductor sample is L, so this is what means if we are applying V potential here, so electric field is produced. And we know that there is a very famous relationship between the drift velocity and electric field is what? Vd is directly proportional to the electric field. जैसे जैसे बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे ये चार्ज कैरियर उतनी ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E. Also we will assign here a constant which is called as mu, which is called as the mobility. So this is E. So mu is what? Mobility of the charge carriers. Mobility of the charge carriers. So if I am writing here the relation for electrons as well as for the holes, then VE क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स? This is mu E and capital E, and हमारा VH क्या होगा? This is mu H into capital E. क्योंकि हमने यहाँ पे सैंपल के ऊपर V पोटेंशियल अप्लाई किया है और लेंथ ऑफ द सैंपल वो भी कांस्टेंट है, चाहे वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो चाहे पार्टिकल होल्स हो. मतलब पोटेंशियल इज सेम फॉर द सैंपल एंड इलेक्ट्रॉन्स, और चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो उनके लिए लेंथ भी सैंपल की सेम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम होगा. बट मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमने अलग से ले ली और होल्स की मोबिलिटी हमने कम ले ली, मतलब अलग से ले ली. ठीक है. और वैसे मैं आपको बता दूं मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है. बिकॉज हम होल हमारा हैवी पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन का हम मास कम लेते हैं. तो जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी. ठीक है. सो नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो बच्चों ये क्या बनेगा? दिस इज Ne म्यू Ve की वैल्यू हमारे पास क्या है? म्यू E प्लस नेक्स्ट इज NH म्यू H E इंटू E. क्लियर? सो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं. I इज वॉट? तो Ne म्यू E बच्चों यहाँ से कॉमन आ जाएगा. NH म्यू H इंटू E कैपिटल E इंटू E. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन और यूज करेंगे. हम IA को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा I बाई A विच इज इक्वल टू Ne म्यू E प्लस NH म्यू H इंटू E इंटू कैपिटल E. क्लियर? सो नाउ दिस इज व्हाट? करंट बाय एरिया. So we know that current by area is what? This is the current density and it is represented by G. ये आपने प्लस 2 में सुना होगा. करंट बाय एरिया इज व्हाट? करंट डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G. तो हमारा स्टूडेंट्स रिलेशन क्या बन गया? J इज Ne म्यू E प्लस NH म्यू H इंटू E इंटू कैपिटल E. क्लियर? Also we have studied Ohm's law in the lower classes. So what is the definition or the formulation for the Ohm's law? So all the students are very much familiar with this statement that V is equal to IR. This is what? This is the standard formulation for the Ohm's law. Clear? So we have one more relation, that is J is equal to sigma E. This is also microscopic form of the Ohm's law. Clear? So V is equal to IR तो बच्चों सबके याद होता है. But this is the another definition or the another formulation for the Ohm's law and it is called as the microscopic form of the Ohm's law and it is what? J is equal to sigma I. So suppose I am writing this is equation number 2 and using according to microscopic form of Ohm's law,
So what we have, J is equal to sigma E. So now this is what? This is our equation number 3. So अगर बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर कर देते हैं. सिग्मा E इज व्हाट? एन E म्यू E प्लस एन एच म्यू एच E इंटू कैपिटल E, और यहाँ से कैपिटल E कैंसिल हो जाएगा. तो सिग्मा हमारा क्या है? दिस इज तो ये बच्चों हमारा रिलेशन आ गया. सिग्मा इज व्हाट? एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई. ठीक है. दिस इज व्हाट? द कंसंट्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एन एच कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन द सैंपल, म्यू एच जो हमारी मोबिलिटी है होल्स की, एंड दिस इज व्हाट? द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और बच्चों हमने पिछले जो डेफिनेशन हम कर रहे थे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, उसमें हमने क्या देखा था? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी? एनर्जी गैप के बराबर, तो नीचे से एक इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. अगर हमारा नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो नीचे हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों? एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है. उस वैकेंसी को हमने क्या नाम दे दिया? होल का नाम दे दिया. अगर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नीचे वैकेंसी भी एक क्रिएट होगी. अगर नीचे से 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो नीचे वैकेंसीज भी 10 क्रिएट होंगी. इसका मतलब द वैल्यूज और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स. और वॉल्यूम जो सैंपल का वॉल्यूम है दैट इज सेम. उसी सैंपल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और उसी सैंपल में हमारे पास होल्स पड़े हैं. इसका मतलब इन द इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मैं लिखता हूं यहाँ पे, for intrinsic type semiconductors we will use one property, Ne is equal to NH. The concentration for the electrons is equal to the concentration for the holes. और इन दोनों को हम बराबर रख के एक सिंबल दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं Ni, which is called as the concentration of the intrinsic type charge carriers. तो हमारी फॉर्मुलेशन बच्चों क्या बन जाएगी? सिग्मा इज व्हाट? Ne और NH बराबर है तो ये कॉमन आ जाएगा. सो अंदर क्या बचा हमारे पास बच्चों? दिस इज म्यू E प्लस म्यू H इंटू E, और ये जब कॉमन आएगा Ne NH तो साथ में उसको हम क्या लिख देंगे? Ne. दिस इज Ni. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने कंडक्टिविटी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली. कई बार हमसे रजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल देते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो हम उसको भी लिख लेते हैं. रजिस्टिविटी इज व्हाट? इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी. सो दिस इज व्हाट? दिस इज म्यू E प्लस म्यू H इंटू E इंटू Ni. सो हमारे पास बच्चों ये दो फॉर्मुलेशंस आ गई. This is the expression for the resistivity and this is the expression for the conductivity. Clear? ये दोनों values किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? हमारी mu E and mu H, these are the values for the mobility of the electrons as well as for the holes. And E हमारा बच्चों क्या है? Constant है. और तीसरा फैक्टर हमारा क्या है? Conductivity depends upon the value of Ni. और अगर मैं Ni की फॉर्मुलेशन लिखूं, Ni is what? Ni is directly proportional to A naught T raised to power 3 by 2 E raised to power minus EGO by T. Clear? So this is the formulation for the concentration for the intrinsic charge carriers. And you किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों? It depends upon the temperature. Clear? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पार्टिकल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे और हमारे पास जो कंसंट्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स and concentration of the holes वो बनती जाएगी. Clear? So this is the complete article for the conductivity of the intrinsic type semiconductor materials. इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों. हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. So what we have in the first numerical, जो बच्चों हमें चीजें दी हैं वो हम लिखते जाएंगे. The conductivity of the pure germanium at the room temperature is, conductivity हमें दी है 2.1277
साइमन्स पर मीटर. सो दिस इज व्हाट, एस इज व्हाट, साइमन्स पर मीटर. तो मैं इसके बारे में बच्चों आपको बताऊंगा. फाइंड द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्योर जर्मेनियम. सो हमें Ni फाइंड आउट करना है. हमें बोला है तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो हमारी इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की डेंसिटी है. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 किलोवोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उन्होंने कितना दे दिया, 10 किलोवोल्ट पर मीटर. मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर है. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. हमें VE फाइंड आउट करनी है और VH फाइंड आउट करनी है. ठीक है. उन्होंने हमें ये दो चीजें लिख रखी हैं ऑलरेडी. उन्होंने μE एंड μH हमें दे दिया. ठीक है. सो सबसे पहले बच्चों हम Ni फाइंड आउट करते हैं. हमें पता है सिग्मा इज व्हाट, दिस इज μE प्लस μH इंटू E इंटू Ni. तो हमें फाइंड आउट करना है Ni. Ni इज व्हाट, दिस इज सिग्मा बाई μE प्लस μH इंटू E. Sigma is what? 2.1277 divided by E. E is what? 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. Into बच्चों क्या है? This is what? Mu E is 0.39 plus mu H is what? This is 0.19. तो हमारा Ni क्या आ गया? This is 2.1277 डिवाइडेड बाई, ये हमारा 10⁻⁻ ऊपर चला जाएगा, 19 बन गया. ठीक है. सो 1.602 इंटू, और ये बच्चा हमारा कितना बन गया, 0.39 एंड 0.19. दिस इज 0.58. तो इसको बच्चों मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ. दिस इज 2.1277 डिवाइडेड बाई 1.602 डिवाइडेड बाई 0.58. तो हमारा ये आंसर आ गया 2.28 इंटू 10⁻⁹. क्लियर. तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ. हमारा जो आंसर आ गया, हमने Ni कैलकुलेट कर लिया. दिस इज 2.28 इंटू 10⁻⁹. और Ni का जो डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, मतलब m⁻⁻3. ठीक है. स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इसके बाद उन्होंने हमें क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मुलेशन क्या था, Vd इज म्यू इंटू E. अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे एक तो चाहिए मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना दिया है हमें, 0.39 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इंटू E की वैल्यू बच्चों हमें कितनी दी है, 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. क्लियर. तो VE हमारा कितना आ गया, दिस इज 0.39 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁵. ये मीटर स्क्वायर है. मैं इस तरह से लिख के आपको समझाता हूँ. दिस इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू वोल्ट पर मीटर. वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड. सो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई. This is 3.9 into 10⁻³ meter per second. Clear? So now next is what? We will find out the velocity of the holes. तो velocity of the holes कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमें mobility of the holes चाहिए और electric field चाहिए. So this is what? This is μH into capital E. मैं ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही यूज कर रहा हूँ. μH is what? This is 0.19 मीटर स्क्वायर per volt per second into E is what, 10 into 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. तो VH की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.19 इंटू 10, तो ये बन गया 1.9 और साथ में 10⁻³ हमारे पास है और यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया. दिस इज व्हाट, 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. तो ये इस तरह से बच्चों हमने सिंपल न्यूमेरिकल कर लिया. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, प्योर सिलिकॉन हैज रेजिस्टिविटी ऑफ 4000 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी उन्होंने दे दी हमें 4000 ओम मीटर एंड वी नो दैट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एंड हमें पता है बच्चों सिग्मा इज व्हाट, दिस इज सिंपली 1/ρ। ये मैंने डेरिवेशन के दौरान भी आपको बताया था। और उन्होंने बच्चों में क्या दिया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल द मोबिलिटी ऑफ होल्स, मतलब म्यू ई इज डबल ऑफ म्यू एच। ये उन्होंने हमें रिलेशन दे दिया म्यू ई एंड म्यू एच के बीच में। और साथ में उन्होंने हमें एन आई की वैल्यू दे दी, दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁶ m⁻⁻3। दिस इज मीटर इनवर्स, मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। सो नाउ वी हैव वांट टू कैलकुलेट दिस म्यू ई एंड म्यू एच। सो वी नो दैट वी हैव वेरी सिंपल रिलेशन, सिग्मा इज व्हाट, this is mu e plus mu h into e into ni। सिग्मा हमें डायरेक्टली नहीं दिया, हमें उन्होंने रो दे दिया। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 1/ρ। क्लियर। तो रो हमें पता है बच्चों, ई पता है, एन आई पता है, म्यू ई एंड म्यू एच के बीच का रिलेशन दे दिया। अगर मैं यहाँ पे म्यू ई की वैल्यू 2 म्यू एच रख दूं तो फॉर्मुलेशन हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज 2 म्यू एच प्लस म्यू एच इंटू ई इंटू एन आई। तो 1/ρ, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 म्यू एच इंटू ई इंटू एन आई। तो यहां से बच्चों अगर मैं म्यू एच निकालूं, म्यू एच मेरा क्या बनेगा, म्यू एच इज व्हाट, दिस इज 1/3ρ ई एन आई। अब मैं सारी वैल्यूज बच्चों रख देता हूं यहाँ पे, 1/3 इंटू, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4000। सिग्मा इज व्हाट, दिस इज 4000, ठीक है। E इज व्हाट, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर, दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड Ni बच्चों हमारा क्या है, Ni इज व्हाट 1.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब पहले हम पावर्स को कलेक्ट करेंगे। म्यू एच देखते हैं हमारा क्या आएगा, पावर्स एक तो है 10⁻⁻19, एक है 10⁻⁶। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, दिस इज -13, -13 मतलब ऊपर जाके ये +13 बन जाएगी। और नीचे हमारे पास क्या है, दिस इज 3 एंड 4000। तो इसको हम लिखेंगे, तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको 3 और 4 लिख दूं, 10⁻3 साथ में लिख लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 1.5। सो ये वाला 10⁻ ऊपर चला गया और ये हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.6 एंड 1.5। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू देखते हैं इसकी क्या आएगी बच्चों। और म्यू एच अगर मैं ऐसे करूं, इसको 10⁻10 को 10⁸8 इंटू 10⁻2 मतलब 100 लिख लूं, ताकि मैं बाकी सारी चीजों से इसको डिवाइड कर सकूं। दिस इज 12 इंटू 1.6 इंटू 1.5। अब इसको बच्चों हम डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 1.5। क्लियर। सो द वैल्यू इज 3.47 इंटू 10⁸8। तो हमारा आंसर बच्चों कितना आ रहा है, म्यू एच इज व्हाट 3.47 इंटू 10⁸8। अब इसका यूनिट भी बच्चों हम देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है। वी नो दैट वी डी इज व्हाट म्यू इंटू ई। तो म्यू का बच्चों यूनिट क्या होगा, वी डी डिवाइडेड बाई ई। वी डी क्या हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दिस इज E इज इक्वल टू dV बाई dr, हमने रिलेशन पढ़ा है। सो E इज व्हाट, दिस इज V बाई मीटर। क्लियर। तो म्यू का रिलेशन क्या बना, मीटर बाई सेकेंड इंटू वोल्ट इंटू मीटर। सो दिस इज व्हाट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो हमारा म्यू का रिलेशन क्या आ गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, किसका आंसर आ गया, म्यू एच का।
और हमें ऑल्सो फाइंड आउट करना है म्यू ई। सो म्यू ई इज व्हाट, दिस इज 2 म्यू एच 2 इंटू दिस इज व्हाट 3.47 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो हमारा म्यू ई कितना आ गया, 2 इंटू 3.47, दिस इज 6.94 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारा म्यू ई आ गया और ये हमारा ऊपर वाला क्या आ गया, म्यू एच आ गया। इस तरह से बच्चों हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बाकी प्रैक्टिस आप घर पे बैठ के कर सकते हो, बुक्स में से न्यूमेरिकल देख सकते हो या इंटरनेट से देख सकते हो। तो आप इसको न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करो, ठीक है। थैंक यू।